compassion, cooperation, and should be always extending helping hands to the needy one. In this poem, which has been written by Mary O'Brien and is a part of your book in chapter 4, the title of the poem is Somebody's Mother. He has generalized this term that the mother can be anyone. The mother can be anyone's, but it is our pious duty to help her if she is in need. So this is the message of the poem and how it has been depicted by the honorable poet. I will read out for you and mix a story based on an event when an old mother is trying to pass the road which is busy, but finding herself helpless, and how all these things happen. So let us start this poem. The woman was old and ragged. महिला बूढ़ी थी और थोड़े मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी थी, मतलब उनके कपड़े डिसेंट नहीं थे. एंड ग्रे मीन्स शी वॉज bearing grey color. Usually in our old ages we develop that appearance. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. Okay, the poet mentions that the lady who is old is facing the extreme cold. As usual at that age, when we are octogenarian, means reaching the age of 80, our waist do come down, means it has a bend. The woman is like that. Her physical feature is like that she is bending towards, she is bending in the front, and has come out from the house to go somewhere. Means इन दो वाक्यों में कवि ने बताया है कि एक महिला जो बूढ़ी हैं और समथिंग अनडिसेंट कपड़ों में लिपटी हैं, थोड़ा मैले कुचैले कपड़े हैं उनके, कमर झुकी हुई है और चिल कोल्ड में, यानी बहुत ही ठंड के दिनों में वो सड़क पार करने के लिए अपने घर से निकल के आई हैं. द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो. हाल ही में बर्फबारी हुई है और गली की सड़क भीगी हुई है. And the woman's feet were aged and slow. Okay, the woman's feet were aged and slow. That's why, because the woman is old enough and the street is wet and has become slippery. थोड़ा फिसलन हो गई है सड़क पे, इस वजह से महिला बहुत ही धीमे चाल से आगे बढ़ती हैं. And the woman's feet were aged and slow. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for, amid the throng. Throng means bhid-bhad, so crowd. Yes, usually in our towns there is a lot of crowd, that people are bustling, and she is finding herself helpless, uncared. She is alone.
and trying to cross the road. भीड़ इतनी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है. She stood at the crossing and waited long. बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही हैं, अकेली हैं, uncared for हैं, amid the throng. भीड़ के बीच में भी वो अकेली हैं, अपने को अकेला पा रही हैं. Of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. Yes, महिला की आंखों में चिंता है, डर है, मगर इतने लोग आ जा रहे हैं, उनके आसपास से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी आंखों में छिपा हुआ वह बेचैनी और दर्द महसूस नहीं कर रहा है. ये हमारे आधुनिक जीवन काल की, ख़ास तौर पे शहरी जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि भीड़ में भी लोग अपने को अकेला महसूस करते हैं. ख़ास तौर पे अगर वह व्यक्ति बूढ़ा या बूढ़ी हो तो और भी समस्या है. बिकॉज वी हैव बिकम लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स आवर old people. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. कभी यहाँ की घटना का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उस सड़क पे स्कूल से छुट्टी होने के उपरांत छात्रों एवं छात्राओं की भीड़ आपस में बात करते हुए, शोर करते हुए, हंसते हुए आते और जाते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर उनमें से कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है. किसी को उनके तरफ ध्यान देने और कुछ महसूस करने की, संवेदना महसूस करने की फुर्सत नहीं है. जैसे Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. मौसम का वर्णन करते हुए कवि का कहना है कि उस वक्त भी थोड़ी बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़बारी की वजह से बर्फ़ का वहाँ ढेर सा लगा हुआ है और कहीं कहीं बर्फ़ गहरे तक जम गए हैं. बच्चों का समूह, जैसे मानो भीड़ का समूह एक साथ चलता है, वैसे आ और जा रहा है, लेकिन किसी के पास भी इस महिला की सुध लेने की फुर्सत नहीं है. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. महिला के आसपास से बच्चे जल्दी आ रहे हैं और जा रहे हैं. Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. अब तक किसी ने भी सहायता का हाथ उन तक नहीं बढ़ाया है. वह इतनी खुद की दबी हुई, इतनी डरी हुई, डर से भयभीत वहीं खड़ी है. Lest the carriage wheels or the horse's feet should crush her down in the slippery street. कभी के दिमाग में यह बात भी आ रही है, उनके मन में चिंता हो रही है कि महिला सड़क पे जाते हुए गाड़ियों के पहियों के नीचे आ सकती हैं, घोड़ों के कड़े खूर के नीचे आ सकती हैं और कुचली जा सकती हैं, क्योंकि रास्ता फिसलन भरा है और महिला अगर खुद से उस पर जाने की कोशिश करेंगी तो फिसलकर सड़क पे गिर सकती हैं और उसके उपरांत घोड़ों के खूर से या गाड़ियों के पहिए से कुचली जा सकती हैं. At last came one of the merry troop, the guest lady of all the group. तभी उस रास्ते से लड़कों का एक समूह खुशी खुशी गुजर रहा होता है.
हियर द गेस्ट लैडी ऑफ ऑल द ग्रुप मीन्स उन बच्चों के समूह से एक लड़का, लैडी मीन्स यहाँ बॉय, लड़का, LADDI लैडी। वह बच्चा महिला को देखता है, उसकी संवेदना जगती है और वह महिला की तरफ आता है। He paused beside her and whispered low। वह लड़का उस महिला के करीब आकर रुकता है और धीमे से महिला से कहता है, I will help you across if you wish to go। महिला से कहता है विनम्र स्वर में कि अगर आप चाहें तो मैं आपको यह सड़क पार करवा सकता हूँ। Her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm। महिला ने इसे स्वीकार कर लिया, मीन्स महिला ने बच्चे के द्वारा किए जाने वाले मदद को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपना हाथ उस बच्चे के स्ट्रॉन्ग आर्म पे रख दिया, कंधे पे अपना हाथ रख दिया। He guided the trembling feet along। और इस बच्चे ने उस बूढ़ी माँ के कांपते पैरों को मदद किया आगे की तरफ जाने के लिए। Proud that his own were firm and strong। इस बच्चे को अपने पैरों की शक्ति, मजबूती पे पूरा गर्व है, विश्वास है और इसीलिए वह महिला को पूरे आत्मविश्वास से सड़क पार कराने में मदद कर रहा है, सड़क पार करने में मदद कर रहा है। Then back again to his friends he went। Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content। और महिला को सड़क पार करने के उपरांत बच्चा अपने मित्रों के समूह को जा मिलता है। अब उसका हृदय खुशियों से भरा हुआ है, उसे इस बात का संतोष है कि उसने एक नीडी पर्सन को, एक ज़रूरतमंद महिला को मदद किया, उनके काम आया। She is somebody's mother, boys you know, for all she is aged and poor and slow। और अपने मित्र मंडली में जाकर कहता है वह लड़का कि वह महिला किसी की माँ हो सकती हैं, वह किसी की माँ हैं, वह बूढ़ी हैं, गरीब हैं और अब इस उम्र में स्लो हो गई हैं, यानी उनका शरीर अब तेज़ी से काम करने में सक्षम नहीं है। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने एक बूढ़ी माता को मदद किया है, उसी तरीके से कभी मेरी माँ भी इस उम्र में आने के उपरांत कभी असहाय किसी मदद के इंतज़ार में खड़ी होंगी तो कोई ना कोई उनकी मदद करेगा। If ever she is poor and grey when her own dear boy is far away। जब ऐसा कोई भी हो सकता है जब उसका अपना बेटा उसके पास नहीं हो तो किसी न किसी को हेल्प तो करना चाहिए। एंड समबडीज मदर bowed low her head in her home that night and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy। और उस रात जिस बूढ़ी माता को इस बच्चे ने सड़क पार करने में मदद किया था, उन्होंने ईश्वर के सामने अपना सर झुका करके यह प्रार्थना किया। वह प्रार्थना यह है, गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय। वह कहती हैं कि हे ईश्वर, इस उदार बच्चे के प्रति आप कृपा करना, उदार बच्चे पर कृपा करना। हु इज समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। वह किसी न किसी का बेटा ही तो है।
मेरे ही बेटे की तरह वह किसी ना किसी का बेटा है और उसने मेरी मदद की है, और इस तरीके से उसको ज़िंदगी में प्राइड और खुशियाँ देना, यानी सम्मान और खुशियाँ देना, ये है इस कविता का एंड। ओवरऑल we may conclude that this poem successfully and beautifully in a very simple way conveys the message that we should always be ready. We must develop a habit and feeling, a sensibility that we should stand by the helpless people. It is our humanity that leads us for extending our helping hand. Thank you very much.